Professor Ratan Kumar Srivastav sir, my colleagues, and other invited guests, and of course our students. Today we are inviting the second lecture of our Bibit Itihas Mala series, and I, Dr. Shutapa Das, is going to open the session. As we all know, COVID has forced us to renew our attention to public health, and it has made us realize the importance of health hygiene and why it should be the part of our everyday life and practice. Hello. I think there is some disturbances. There is some noise going on in the background. So, yeah, I request if you could, all of those students who have not unmuted, please do so. some noise. So, Sutapa will talk. Yes. Can you hear us, Sutapa? I can hear, but there is a switching noise which is going on in the background. So, I hope it is. Okay. So, no, but you please proceed. It is audible out here. The system. This is the part of the online problem. So, anyways. So, thank you. I think these hindrances will be there first. Yes, Malvika ji. It's okay. Yes. It doesn't matter. Let us. Okay, so please proceed. As I said, COVID has forced us to renew our attention to public health, and it has made us realize the importance of health hygiene and why and how it should be part of our everyday life and practice. Historically, we have seen epidemics like cholera, TB, Spanish flu, and Ebola, and many other epidemics. But I think the ravage that COVID has created globally, it is really unprecedented. The two successive waves have made us realize how fragile our health system is, be it in terms of infrastructure, logistics, or timely availability of doctors. And when I'm speaking about this, it's not only true for only our country, but we have seen even in the countries boasting of best healthcare system like US or countries like France or Italy by succumbing to this emergency medical situation. Today, all of us have felt the heat of this pandemic. Many of us have lost our dear and near ones. Many amongst us is still grappling with post-COVID health issues. The pandemic has created a new notion of trauma and anxiety. It has made us realize that we need to urgently revamp the entire health system to tackle any such kind of medical calamity in future. While caregivers played a very, a role of a messiah, I can say, in this critical situation, and we have increasingly realized the importance of public health policy and awareness creation in this period of crisis. We all know vaccination is ongoing, and to make it successful, I think इसको एक जन आंदोलन के तरीके से देखना चाहिए for all people across nation, and only then it will be very successful. So, but equally important, I think, is the human behavior. A good public policy and a strict execution can play a very determining role in this regard. So today we are extremely happy to have amongst us Professor Ratan Kumar Srivastav sir. Sir, you are the former head of the Department of Community Medicine, IMS BHU. And I'm sure we are going to have very useful insight into public health issues through today's session. And all of us are eagerly awaiting to hear from you. But before I start, I would like to invite Professor Keshav Misra sir to give welcome address for Srivastav sir. So over to Keshav sir. Sir? Yes, sir. Namaskar and very warm good afternoon to all of you. It's a matter of pleasure that Professor Ratan Kumar Srivastav sir, who is former head and professor Department of Community Medicine, has agreed to come amidst us, of course, online mode at a very short period of time. In a very short period of time, he has been so generous, and we welcome you, sir. Because the topic that you will be speaking on, public health and social changes in India, a historical overview,
is bound to be very enriching for us. So we are grateful to you that you have spared valuable time. And without much ado, I don't want to stand between your intervention and all of my colleagues who are eagerly waiting to listen to you. So warm welcome again, sir, and we look forward to hear from you. And of course, when things will be normal, we will be very grateful if you can drop in and we can have some offline program as well. I'm grateful that Professor Malvika Ranjan contacted you, and in a very short period of time, we are having this program. Over to you, sir. Thank you, Keshav Sirji, for your welcome note. Now I would like to invite the initiator of this Vyakhanmala series, Professor Malvika Ranjan, who is going to introduce us with the biographical details of Ratan sir. Thank you. Malvika ji, over to you. A very warm welcome to everyone. And before I give an introduction to our esteemed speaker, Professor Srivastav, I would like to highlight the basic intention with which we started this lecture series, विविध इतिहास. तो सबसे पहले कि मानव के क्रियाकलापों की विविधता को जानने के लिए हम ये व्याख्यान माला का प्रारंभ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि we take a step towards enhancement of a knowledge for total history. समग्र इतिहास मानव का जाने, ये इस उद्देश्य से हमने इस व्याख्यान माला का प्रारंभ किया है. और इस व्याख्यान माला में जो प्रथम वक्ता रहे वो हमारे विधि विभाग से प्रोफेसर अखिलेश पांडे, जिन्होंने मार्च 2020 में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया कि कैसे इतिहास में मानव ने कौन से नियम बनाए, कानून बनाए और उसका अपना स्वयं का विकास किस प्रकार से निर्धारित किया. और इसी दिशा में आज दूसरा व्याख्यान है जो कि हमारे समक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, who is a person of world acclaim, and with his expertise and his profound knowledge, he's been bringing laurels to BHU, and I will introduce him to the audience right now. Professor Ratan Kumar Srivastav is MD and MBBS by BRD Medical College, Gorakhpur. He is an alumni of London School of Hygiene and Tropical Medicine, as he studied Part 1 of PhDC, Public Health and Developing Country. He also studied Health Economics from London School of Economics. He has 38 years of rich experience in teaching community medicine, College of Gujarat, and more than 12 years and 6 months at Institute of Medical Sciences, BHU. He has carried out various research projects funded by UNFPA, UNICEF, Government of Gujarat, USAID, ICMR, WHO, etc. His area of expertise are telemedicine, epidemiology, and health services research, health program evaluation, research methodology, data handling, family welfare, and IPC. He has been the nodal person for successfully establishing the Regional Resource Center unit in the Institute of Medical Sciences, Eastern India, with support from Ministry of Health and Family Welfare. Establishment in spectrum of activities ranging from infrastructure planning to ensuring connecting it with 50 other medical colleges. The key features of the unit also include virtual OPD, virtual interface from handling medical legal cases named as e-presence, has been associated as co-coordinator for Regional Resource Center for Eastern Region of India from September 2016 to April 2020. His professional expertise in various significant fields such as teaching, research, administration is a unique mix. He has also given deliberations at international levels such as Smith College, Northampton in USA, in the 20th World Congress on Clinical Nutrition at Thailand and 21st World Congress on Clinical Nutrition at Budapest, Hungary. As to his credit, more than 80 publications in national and international journals, and he has guided more than 14 students for award of MD in community medicine and also guided 7 students for award of PhD. So here I present Professor Srivastav to deliver a lecture on a very relevant topic for today. Thank you so much, sir. Professor Srivastav. Ideally, तो ये मास्क लगा के मुझे बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं कमरे में अकेला बैठा हुआ हूँ अपने रूम में, मैंने मास्क हटा दिया।
जी और सर, अगर 2 या 3 लोग बैठे हैं तो वो मास्क लगाना जरूरी है। मैंने हटा दिया इसलिए कर रॉन्ग जाए हमारे इस तरह के व्यवहार से, इसलिए मैं जी। सोचा आपसे मैं बता दूं, मैंने मास्क अभी हटाया, मैं अकेला घर में, जी और मैं सर। सोचा आप लोग मुझे देख लें ताकि मैं जब आऊं तो मुझे पहचान सके, वरना सोचेंगे कौन आ गया। नहीं जरूर आपके सर, हम विभाग में हैं, हमारे सहयोगी आप लोग आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए सब जी। बहुत सारे यहाँ विद्यमान हैं सर, इसलिए मास्क हम लगाए हैं सर। हाँ, मैं बीएचयू में रहा हूँ, काफी इंटरेक्शन हुआ है, तो बीएचयू से लगाव है काफी। मुझे बड़ा अच्छा लगा अपने ही लोगों से बात करने में, खास तौर से दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट से। मुझे लगता है इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये पब्लिक हेल्थ। एक चीज डॉक्टर मालविका से बात तो हमने करी थी कि सोशल चेंजेस एंड मेडिकल चेंजेस हम दोनों पे डिस्कस करेंगे, बट मुझे अच्छा लगा कि 1 आवर इज लेस। तो मेरी जो बीएचयू की फैकल्टी है, जो सोशोलॉजिस्ट हैं, मैंने उनसे ये मॉर्निंग में डिस्कस किया कि अगर मैं अकेला दोनों पढ़ाऊंगा तो इट विल टेक 2 आवर और मोर। तो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में ही उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है, वो आप देखेंगे, उसमें मैंने मैसेज रखा है, तो आप फिर एक और लेक्चर कर लीजिएगा, उसको लिंक कर लेंगे, हम लिंक इसी स्लाइड से कर लेंगे। कैसे करते हैं मैं बताता चलूंगा। और अब मैं इसको अपनी स्लाइड दिखाता हूं, तो मैं देखता हूं कि विंडो, म्यूट कर लें आप लोग, जो लोग सुन रहे हैं अपना माइक म्यूट करके रखें। अच्छा गुड, हाँ सर, हमारी स्लाइड आनी चाहिए। अच्छा आ गया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप हमारी स्लाइड अब देख पा रहे हैं। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है हमें, और ये सब हम लोग जानते हैं, सर्वजन सुखिनो भवन्तु, सभी लोग, ये पब्लिक हेल्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि सभी लोग डिजीज फ्री रहें, दैट इज बेसिक फिलॉसफी। और ये हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। मेरी स्लाइड देख पा रहे हैं तो आप देखें कि I have divided like this. You can see like disease control prevention phase. So there are many phases, like then health promotion phase. These are historical important events which has happened. Then social engineering phase, then health for all, and then certainly MDG and SDG, Sustainable Development Goals, and MDG goals. So we all know it. I'm starting from here. Like what is public health? This person C.E.A. Winslow in 1920, he is a person from USA, and he was a very dynamic person and non-medical person, but he tried to define for the first time the public health, and he told that it is science and art. So medicine, like sometimes at this stage I would like to say that people try to divide that art and science, two different things. I feel personally, if we go in, then art is also science and science is also art. So this, because I think we need 1 more hour to explain this philosophy, and I think you can explain in a better way that art is a science and science is also art. That is why, so we cannot differentiate it. Many times people say that this is science and that is art. People try to differentiate it, but I consider that both are same, and philosophically like soul is same. So people try to divide it, because we often say that our medicine is a type of art basically, and art is also science. So the public health, you can say that science and art of preventing diseases, we want to prevent it. And at this stage of corona, we all have understood the importance of prevention, because you have seen there were so many cases. There was a huge crowd and there was cry for oxygen. You just imagine how many hospitals we can make. If we make 1,000 hospitals in Varanasi only, or you can imagine
there is one medical college, Institute of Medical Sciences. If we make 10 Institute of Medical Sciences, so they will be utilized only for 1 month or 2 months during the period of crisis. So that is not permanent solution. Permanent solution will always be public health. So we have to understand public health. And let me tell you, because I am working this specialty, but the government has given very less importance to public health in the development process. And the developed countries, they have invested a lot of money in public health. But because of Corona, now I am expecting that lot of attention will be paid to public health. This is because we all have to prevent it. We all want to move freely in the market, and everywhere we want to travel. And so perhaps now people want to spend money on public health. So the public health is a science and art of preventing diseases. And by preventing, we prolong life and we promote health and efficiency through organized community effort. So this is not only government action. Each and every individual who is residing in our country, who is residing in Lucknow, who is residing in Varanasi, who is residing inside campus of BHU, everyone has to participate. That is you can say, the main meaning of public health. Another person, the Larry Garrett, what he has said, that focusing on clinical services while neglecting services that reduce exposure to disease is like mopping a floor continuously while leaving the tap running. So we used to say, suppose आपके घर में, आपका घर है, एक नल आपने खोल दिया और पानी बह रहा है जमीन के ऊपर, और आपने एक सर्वेंट को लगा दिया कि चलो इसको पानी को सुखाओ, वो पहुंचता रहेगा पानी। आप बार बार 3-4 बार आप उसको साफ करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे, क्या पर पानी तो आता रहेगा। तो until unless we close tap, अगर हम तो टैप को बंद नहीं करेंगे तब तक ये आता रहेगा। सो हॉस्पिटल्स, दे आर लाइक मॉपिंग। आप लोग मॉपिंग करते हैं, वो हॉस्पिटल है, लेकिन जो मेन सोर्स है, नल जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, अगर हम उसको इफ वी डू नॉट इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, तो हमारा जो नल है वो तो चलता रहेगा और डिजीज होती रहेगी। आप कितने हॉस्पिटल बनाएंगे? तो क्योरेटिव में इन्वेस्टमेंट, अगर आप प्रिवेंटिव पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और क्योरेटिव पे, उसका एक्सपेंडिचर 1 रुपए और 16 रुपए का ये डिफरेंस आता है। एक बार आप उसमें खर्च कर दें। हम आपको, बिकॉज आई टू टेल यू द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, मैं हिंदी इंग्लिश मैडम से दोनों से परमिशन ले लिया ताकि हमारे स्टूडेंट भी समझते रहें। मैं दोनों भाषा में बोलने की कोशिश करूंगा। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इन एंशिएंट टाइम्स, प्री वैदिक पीरियड। मेरे पास एक स्लाइड थी, उसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब बहुत सारे थे। मैंने सोचा आप लोग बहुत विद्वान हैं, ये सब आपको पता होगा, क्योंकि मैं एक आध बार यूरोप गया हूँ लेक्चर देने के लिए, तो उनको मुझे बताना पड़ता है कि हमारे कंट्री में ये सब ग्रंथ हैं, बहुत पहले से ये हिस्ट्री है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एंशिएंट टाइम में क्या होता था। हेल्थ इज एज ओल्ड एज द मैन। आप देखिए, जब से ह्यूमन मैनकाइंड शुरू हुआ, ये मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ, तो वो उसकी तबीयत कभी भी खराब हुई तो कोई ना कोई उसको इलाज करने वाला, आपको कोई झाड़ फूक करने वाला कोई भी आया है। तो डिजीज एंड ह्यूमन सफरिंग्स एंड कैलामिटीज आर एट्रीब्यूटेड टू राथ ऑफ गॉड। लोग यही समझते थे कि हमसे कोई देवी देवता नाराज हो गए हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स को लोग बड़ी माता बोलते थे, और उसके नीम के पत्ते को हम लोग घर के बाहर का के रखते थे। लेकिन इसका पब्लिक हेल्थ एडवांटेज ये हुआ कि वो हाईली इन्फेक्शियस है, और नीम का पत्ता जिसके घर में लटका है, तो दूर से देख के पता चल जाता है कि वहां कोई पेशेंट है स्मॉल पॉक्स का, तो वहां कोई विजिट करने नहीं जाएगा, लोग सावधान रहेंगे। तो ये एक सोशल ये सिस्टम था। तो मेरे आज के लेक्चर है, मैं जो सोशो कल्चरल एस्पेक्ट है वो मैं छोड़ा हूं, लेकिन दोनों बिल्कुल मतलब समझिए कि शरीर और आत्मा का रिलेशनशिप है, ऐसे हम नहीं कर सकते। तो मैं आत्मा छोड़ रहा हूँ, शरीर की बात कर रहा हूँ। आत्मा वो उसको डिस्कस करेंगी बाद में मेरे लेक्चर के बाद, तो आप उसको रिलेट कर लीजिएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग उसको देवी देवता का मानते थे। मेरी मदर, मुझे याद आ रहा है, मैं जब घर में खाना खाया करता था और अगर कोई आदमी आ जाए तो मुझसे कहती थी, बेटा तुम जरा अंदर वाले कमरे में चले जाओ। वो तो मैं पूछता था क्यों? उनका वो तुम्हें देखेगा तो तुमको नजर लग जाएगी, तो इविल आई। तो ये भी था। तो मेरा बचपन तो इन्हीं सब विचारों से, क्योंकि मेरी मम्मी डॉक्टर नहीं थी, तो आई एम वेरी रिच कि क्या क्या
कल्चरल वैल्यूज है, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे आदमी बीमार बनता है। डॉक्टर बनने के बाद ये सब हमारी चीजें खत्म हुई थोड़ी सी। मैंने अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करा। अब वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाते रहते हैं, कोई भी आता है झाड़ू लगा के चला जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर्टेनली हमारी मदर होती तो बहुत मुझे डांट पड़ती। तो वही रात ऑफ गॉड धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ। मैजिक एंड स्पेल्स, कई बीमारियां होती हैं अभी भी, आजकल तारीख में भी झाड़ फूंक वाले मिलते हैं आपको। और सबसे अच्छी बात है वो क्यों फेमस होते हैं ये मैं बता दूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूं। वो असल में कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट होते हैं। और लाइफ में अगर हम कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं तो किसी भी एरिया में हम बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। तो कम्युनिकेशन, हमें कहाँ क्या बात करनी चाहिए, अगर ये नहीं आता है तो हम कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। हमारे बहुत से फैकल्टी को मैंने देखा, हमारे मेडिकल कॉलेज में भी देखा, देयर वर फ्यू एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन, देयर वर फ्यू एक्सीलेंट इन रिसर्च वर्क, बट दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। तो उसका क्रेडिट वो ले जाते थे हमारे फैकल्टी जो कम्युनिकेशन, जिनको अगर कम भी आता था या उन्होंने रिसर्च नहीं भी करी, लेकिन चूंकि दे वर गुड इन कम्युनिकेशन तो बाजी मार ले जाते थे। और ये हम सब लाइफ में देखते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के कारण ही झाड़ फूंक वालों की वैल्यू होती थी, वो मोटिवेट कर लेते थे। मैं तो कई बार, मेरे टीचर कहते थे कि सड़क पे खड़े होकर देखो ये जो जादू टोना वाले हैं, वॉच करो और देखो वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने खड़े होकर देखा है कि वो कैसे जादू टोना करते हैं और फिर जड़ी बूटी बेचते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कैची बातें होती हैं। तो ये हमें सीखना चाहिए अगर हमें अपनी बात बहुत इन्फ्लुएंशियल बतानी है। तो उस समय ये जादू टोना करते थे, प्री वैदिक एरा है। जो बोलने में सक्षम थे, जो मार्केटिंग कर लेते थे, वो बुला लेते थे, लोग उनके पास जाते थे। नाउ ड्यू टू बिलीव इन इन्फ्लुएंस ऑफ इविल स्पिरिट, मैंने बताई आपको, इविल स्पिरिट, बुरी आत्मा आ जाएगी शरीर के अंदर, या तारे सितारे ऐसे हैं, या ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं। देखिए, हम किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे हमारे क्या कहते हैं ज्योतिषी वगैरह भी लोग हैं, हम उनको भी कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन मैं वैज्ञानिक ढंग से बात करना चाहता हूं। और ज्योतिषी एक अलग विज्ञान है, तो मैं यहाँ बोल रहा हूं तो इसमें उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन हम उसको रिलेट करना चाह रहे हैं कि प्लैनेट से भी लोग रिलेट करते हैं। सुपर नेचुरल थियोरी आई डिजीज की, तो ये पीरियड जो था हमारा, अगर हम इसको डिवाइड करें डिफरेंट पार्ट्स में, तो इसको हम बोलेंगे सुपर नेचुरल थियोरी ऑफ डिजीज। वो बस ऊपर से बोलते थे, आकाशीय कोई हमारी बीमारी का कारण है। ये हमारी हिस्ट्री थी। हेंस हाइजीन एंड क्लीनलीनेस वाज द ओनली ऑप्शन। उस समय क्या था, आप नहाओ, अपने को साफ रखो और अपने को ठीक करो। मीन्स कोई इलाज दवा ववा तो होती नहीं थी, वो थोड़ी झाड़ फूक और वो साइकोलॉजिकल और जो मेंटल है, वो आज भी हम मानते हैं कि 50% इफेक्ट जो है उसका होता है। और ये एक हमारा अलग टॉपिक रहेगा, क्योंकि साइकेट्रिस्ट और बहुत सारी इस पर रिसर्च हुई है। आज मैं बात नहीं करूंगा, कभी मुझे मौका मिला तो मैं इसी पे ही आपको बताऊंगा कि मेंटली अगर हम स्ट्रांग हैं तो हम कितने स्ट्रांग होते हैं। इंडिया हैज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्री वैदिक पीरियड मैं बता रहा हूं आपको। हाइजीन वाज गिवन एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मेडिसिन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हमारे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स दे मस्ट हैव रेड मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। हमारी मॉडर्न, इसको बोलते हैं प्री मेडिवल हिस्ट्री शायद, और हमारी हिस्ट्री के टॉपिक भी शायद डिवाइड होते हैं। एक एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं हम लोग, फिर एक मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं, एक मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। अगर मैं सही हूं तो, जो आप लोग ज्यादा जानते हैं हिस्ट्री वाले, तो हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ा है, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री मुझे लगता है कि 1200 से शुरू होती है, और इल्तुतमिश आए थे, वो सब बलबन वगैरह का था स्लेव डायनेस्टी। तो उस समय से लेकर के ये हमारे 1900 तक था, ये शायद फिर मुगल डायनेस्टी शुरू हुई 1600 तक वैसा था। तो एनीवे, तो हाइजीन वाज गिवन एंड इंडस सिविलाइजेशन। और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में आपको मैं फोटो भी लेके आया हूं आपको दिखाने के लिए कि फर्स्ट अर्बन सैनिटेशन सिस्टम, जो आजकल हम लोग नालियां बनाने की बात करते हैं। और कोई मुझे सिग्नल दे दे कि मेरी आवाज पहुंच रही है। यस सर, आपकी आवाज पहुंच रही है। ओके। इसलिए कि मैंने कई बार देखा हमारे कुछ शिक्षक, उनको पता ही नहीं चलता है कि सब लोग डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और वो बेचारे लेक्चर देते रहते हैं। तो मुझे उनकी याद आ गई, मैंने कहा आपसे कंफर्म कर ले। थैंक यू। तो फर्स्ट अर्बन सैनिटेशन सिस्टम, ये आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में, और इतना बढ़िया है। मैं तो गुजरात में गया हूँ, उसको देख के आया हूँ, बाकी तो पाकिस्तान में है वो, और वहां पे मैं उसको देख के आया।
और करीब 3500 BC, वो तो 5000 BC कहते हैं हमारे ख्याल से। ये तो आप लोगों को उसका एज कैलकुलेट करना होगा कि एक्चुअल कितना है। और वो बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, पानी का फ्लो मैंने देखा कैसे कितना अच्छा बनाया गया है, बहुत ही अच्छा है। रापर तालुका में है गुजरात में, शायद हिस्ट्री के लोग जानते होंगे। तो मैं वहां विजिट करके आया, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था। और शोड रेलिक्स ऑफ प्लांट सिटीज एंड ड्रेनेज। ये आप सोचिए 3500-4000 5000 पहले की बातें हैं। हाउसेज और पब्लिक बाथ होते थे और उसमें ब्रिक्स मैंने देखा, ब्रिक्स मटके देखे मैंने, बहुत सारे मिट्टी के खिलौने देखे। ये देखिए, ये मोहनजोदड़ो का वहां पे एक हमने टॉयलेट देखा, तो मैं टॉयलेट की फोटो, क्योंकि हम पब्लिक हेल्थ वाले हैं, हमने सोचा था ये लेक्चर में जब अंडर ग्रेजुएट्स को मैं टॉयलेट के बारे में पढ़ाता हूँ तो उनको बता दूं कि टॉयलेट जो है बहुत पहले है। और कई बार मैं महल और राजमहल जब देखने जाता हूं तो वहां मैं टॉयलेट ही ढूंढा करता हूं कि राजा साहब कहाँ जाते थे, टॉयलेट उनका कैसा था। तो कई बार गाइड ने दिखाया नहीं मुझे, लेकिन कहीं कहीं मुझे दिखाई दिया कि वो टॉयलेट क्या होता था। और ये देखिए, ये हमने मोहनजोदड़ो का ये लिया है। ड्रेनेज सिस्टम देखिए, जिन्होंने देखा नहीं है, गए नहीं है, वो देख सकते हैं कितना अच्छा है ये सिस्टम। और आज के तारीख में भी हम लोग यही सब डेवलप कर रहे हैं। ये खोद के निकाला गया है, मीन्स आफ्टर डिगिंग। फिर हम आते हैं आयुर्वेदा कैसे ओरिजिन हुआ, वैदिक टाइम्स में आए हैं इसके बाद। तो वैदिक टाइम्स में आयुर्वेदा मीन्स, अब आयुर्वेद हम लोग समझते हैं जड़ी बूटी, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। आयुर्वेदा का मीनिंग है नॉलेज ऑफ लाइफ। हमारे कई कलीग हैं वहां पे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज वाले, और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं कभी आयुर्वेद वालों के साथ रहा नहीं मेडिकल कॉलेज में, ये BHU बड़ा यूनिक है, बड़ा आई थिंक मे बी वन इन वर्ल्ड, जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद मेडिसिन साथ में बैठते हैं और साथ में प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा वर्ल्ड में कहीं है ही नहीं, मुझे नहीं ज्ञान है। अगर कहीं है और पता है तो फिर या तो आप मुझे बताइएगा, आप लोग हिस्ट्री के लोग हैं, कहीं पता हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी। आयुर्वेद वालों से पूछा, जामनगर में भी है, तो दोनों अलग अलग है, करीब 10 किलोमीटर दूर है फेमस आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और मॉडर्न मेडिसिन। तो यहाँ पर मैं उनसे पूछता था, उन्होंने मुझे बताया आयुर्वेद मीन्स नॉलेज ऑफ लाइफ। देखिए कितनी अजीब बात है, और ये अथर्ववेद से निकला। फिर ग्रेट फिजिशियन ऑफ एंशिएंट, ये हम आपको सबको पता होगा, चरक और सुश्रुत, ये दो लोग थे। इन्होंने एक बुक लिखी, उसको संहिता बोलते हैं, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता। और चरक संहिता जो उनकी बुक है, उसमें 500 तरह की मेडिसिन, और करीब ये उन्होंने 5000 साल पहले उन्होंने लिखा था। ये ऑब्जेक्टिव बनाए थे, जैसे आप देखिए पब्लिक हेल्थ से रिलेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ गुड हेल्थ, हम भी कहते हैं पब्लिक हेल्थ, स्वस्थ रखिए। और आप देखिए कोरोना में, ये मैं आपको बता दूं शॉर्ट में इसी मौके पर, कि ये वायरल डिजीजेस कई होती हैं और एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग एंटीबायोटिक दे सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और जितनी भी वायरल डिजीज हैं, जैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स, वायरल फीवर उसी में आ गया है, तो इन सब का कोई इलाज नहीं होता। वायरल हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस हो जाता है, हमको 1.5 महीना वेट ही करना पड़ता है। तो इसमें हमारे पास कुछ दवाएं तो हैं, लेकिन ये मैं आपको एक सूत्र दे दूं, कोरोना से शरीर खुद लड़ता है वायरस से, कोई भी डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर सकता। वो टेम्पररी आपको, आपकी सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन दे देगा, लेकिन फाइनली लड़ाई हमारी बॉडी करेगी। देयर इज नो मेडिसिन, और आज भी मेडिसिन चल रही है। हमारी मतलब जो ट्रीटमेंट रेजिमेंट है वो भी बदलती जा रही है। तो इसमें कोई आलोचना, मॉडर्न मेडिसिन की आलोचना करने की जरूरत नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं अरे बेकार है, उनके पास दवा नहीं है। दवा तो कहीं नहीं है, क्योंकि ये वायरस है, इसका ला इलाज होता है, लेकिन हमारी बॉडी फाइट करती है। आप देखिए 100 में से 90 लोग तो उनको पता ही नहीं चलता बीमारी हुई। कुछ लोग जो कमजोर होते हैं उनको हो जाती है। तो हम आपसे कहेंगे ये आयुर्वेद का फॉर्मूला अपनाइए, प्रिजर्वेशन ऑफ गुड हेल्थ, अपने को स्वस्थ रखिए, 7 घंटे अच्छे से सोइए, ताजा फल खाइए, अच्छा फ्रेश खाना खाइए, बहुत सारी मिठाई, बहुत सारा वो सब मत खाइए, मतलब रिच फ्रूट खाइए, अच्छे से प्रोटीन खाइए, आपको कुछ भी खाइए, खाना खाइए, कोई महंगी महंगी आपको बॉडी रेजिस्टेंस बनाने के लिए जरूरत नहीं है। कॉम्बैटिंग डिजीज, जब बीमारी हो तो आयुर्वेद में कहते हैं उसको करो। और देखिए 3 सिद्धांत हैं, देह शुद्धि, मन शुद्धि एंड दशा शुद्धि। तो देह शुद्धि मतलब अपने शरीर को शुद्ध करो, मन शुद्धि अपने मन को शुद्ध करो, और देश शुद्धि मीन्स
आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है उसको शुद्ध करो। बस आयुर्वेद की यही फिलॉसफी है कि अगर आपका मन शुद्ध है, आप अच्छे विचार रखेंगे, आप अपने शरीर को शुद्ध रखेंगे और अपने आसपास का एनवायरनमेंट शुद्ध, स्वस्थ रहेंगे। और बहुत ही हम आज भी, हमें भी लगता है उन्होंने बड़ी गूढ़ बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी है। प्योरिटी एंड क्लीनलीनेस, वो हमारी जो इंडियन मेडिसिन थी, मनु संहिता, उसमें यही लिखा हुआ है। प्योरिटी होनी चाहिए, मीन्स मन शुद्धि और देह शुद्धि और सर्टेनली दशा देश शुद्धि। अब हम आपको पोस्ट वैदिक पीरियड में ले चलते हैं, 600 से BC से 600 AD। और तब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ये डोमिनेटेड था बाय रिलीजियस। उस समय रिलीजन बहुत डोमिनेंट हो गया था। ये वो पीरियड है 600 BC से 600 AD। उसी में ये आप बनारस का, ये मैंने देखा है सारनाथ, ये आप देखिए, आपका जाना पहचाना है और ये कितना पुराना है। और ये स्ट्रक्चर देखिए, वो भी आपको मिलेगा। फिर नालंदा और तक्षशिला। नालंदा बिहार में है, मैं गया था वहां पे, वहां की लाइब्रेरी देख के आया था और इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी और 6 महीने तक उसकी किताबें जलती रही थी। तो इससे बहुत सारे हमारे जो ग्रंथ हैं, बहुत सारी जो नॉलेज की चीजें हैं वो खत्म हो गई हैं। और हमारे ख्याल से जर्मन और UK वाले, इंग्लैंड वाले थे, वो लंदन वाले, वो ले गए जब उनका शासन था। जिसका जो शासन था वो किताबें ले गया तो किताबें रही ही नहीं। और हम लोगों को शायद कहीं कहीं से जो मिल जा रहा है वो है, वरना ये लाइब्रेरी 6 महीने, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल की तक्षशिला और नालंदा, चाइना से कहाँ से लोग पढ़ने आते थे। और मुझे तो आश्चर्य होता है मैं जब पढ़ता हूँ। और आप ज्यादा जानते हैं, मैं तो हिस्ट्री वालों के सामने तो ये ऊंट के मुंह में जीरा है, मैं ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन धैर्य से सुन रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटीज थी। और राहुल संस्कृतायन, उन्होंने हॉस्पिटल का कंसेप्ट डेवलप किया जो गौतम बुद्धा के बेटे थे। और आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, उन्होंने सबसे पहले हॉस्पिटल बनाया मेन और आदमियों के लिए, औरतों के लिए और जानवरों के लिए। तो तीनों के लिए उन्होंने हॉस्पिटल बनाया। हम लोग आजकल जो हॉस्पिटल है उसको एनिमल हस्बेंड्री को अलग रख देते हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल हम लोग बना रहे हैं तो खाली मेन एंड विमेन पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, एनिमल पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये तीनों जीवंत हैं और वातावरण में ये बैलेंस होता है। ये पुरानी फिलॉसफी थी, आना ही पड़ेगा। अब आते हैं हम 680 से 1850 AD, नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, आप लोग तो हिस्ट्री में काफी जानते हैं, जिसमें हम पब्लिक हेल्थ का लेना चाहते हैं। तो विटनेस राइज एंड फॉल ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। स्लेव डायनेस्टी आई, मीन्स गुलाम वंश, वो आया। और उसके बाद मुगल एम्पायर आया, वो आया। तो कैसे लड़ाई होती थी, मैंने एक फोटो लगाई हुई है इसमें। फिर मुस्लिम रूलर्स आए करीब इंडिया में, और वो 1000 AD में आए यहाँ पर। इसके बाद अरेबिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया यूनानी सिस्टम। और ये यूनानी सिस्टम जो है ये बना है ग्रीक मेडिसिन से। वो उन्होंने क्या करा, उस समय उन्होंने रोम से और ग्रीक से वहाँ का लिटरेचर, मेडिकल लिटरेचर लाके उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज में उसको लिखा और बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद उसमें उसको यूनानी सिस्टम में कन्वर्ट किया गया। वो ठीक है, नॉलेज शेयरिंग होता था हम लोग, और हम लोग दूसरी भाषा में, अगर बंगाली भाषा में है तो हम लोग उसको हिंदी या इंग्लिश में लिखते हैं क्योंकि वो समझ नहीं आती। तमिल भाषा है तो उसको भी हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सो नॉलेज शुड बी ट्रांसलेटेड और वो शेयर होना चाहिए। दैट इज हाउ यूनानी सिस्टम वॉज डेवलप्ड। स्लोली इंडियन सिस्टम अंडरवेंट पॉलिटिकल चेंजेस। अब जो इंडियन सिस्टम था, जो डेवलप हो रहा था, वो इतने तरह के रूलर्स आए कि वो काफी चीजें आपने देखा, नालंदा वो कैसे जला के खत्म कर दी गई, जो बहुत सारी वैदिक पीरियड की जो बहुत सारी पुरानी चीजें थी वो सब खत्म हो गया। और जो बहुत से लोग मार दिए गए, बहुत से विद्वान लोग, तो वो भी नहीं रहे। और पहले तो किताबें नहीं होती थी, लोग मुंह से ट्रांसफर करते थे नॉलेज, उनका ज्ञान ओरली बताते थे। एंड द मेडिकल सिस्टम विच ग्रू बाय सेजेस, साधु संत लोग जो सालों से जो करा, वो स्लोली वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और फिर हॉस्पिटल हमारे डिसअपियर हुए, थोड़ा सा स्टैटिक ये फेज रहा। अब यूनानी मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। व्हेन यूरोप वाज पासिंग, एक टाइम था यूरोप डार्क एज में था, और अरेबियन जो है वो ट्रांसलेट कर रहे थे ग्रीक और रोमन मेडिकल लिटरेचर को इनटू अरेबिक। तो उस समय अरेबियन वो लोग राइज पर थे और उन्होंने एक अपना यूनानी सिस्टम डेवलप किया। इस तरह से यूनानी सिस्टम डेवलप हुआ। यूरोप तो डार्क एज में था उस समय। फिर पब्लिक हेल्थ इन ब्रिटिश इंडिया, फिर क्या हुआ, आफ्टर मुगल पीरियड ब्रिटिशर्स आए
और करीब 1600 के आसपास आए 1700 में। और फिर वो यहाँ पर ये हम लोग आपको दिखा रहे हैं और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी जो ब्रिटिश रूल था उन्होंने 1947 तक हमारे यहाँ शासन किया। एक रॉयल कमीशन अपॉइंट किया गया और उन्होंने सोचा कि हमारी आर्मी को बहुत तकलीफ हो रही है। देखिए ब्रिटिशर्स सेल्फ सेंटर्ड थे, उनकी जो आर्मी थी उनके यहाँ बीमारियां फैल जाती थी। तो उन्होंने एक रॉयल कमीशन बनाया और ये पता लगाने की कोशिश करी कि हमारे आर्मी के लोग बीमार क्यों पड़ जाते हैं। फिर ये स्टडी भी उसमें बताया उन्होंने, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो व्हाट दे नोटेड, उन्होंने कहा हमारे आर्मी के लोगों को प्रोटेक्शन ऑफ वाटर सप्लाई चाहिए। अच्छा, वाटर सप्लाई देने वाले ये गांव के लोग ही आते थे, जो जहाँ पे इंडियन जो थे वो पानी देते थे, जो वहाँ पे रहने वाले भारत देश के। तो उनको लगा कि वो उनको सेफ पानी चाहिए, एक तो ये था। फिर उन्होंने कहा ड्रेनेज उनका कहीं नहीं था, तो उनका ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए ताकि उनका जो कैंटोनमेंट एरिया था वहां से पानी निकले। फिर प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक, देखिए इनका सेल्फिश मोटो था, जो कि इनको बीमारी नहीं हो, तो ये चाह रहे थे जो सिविल पॉपुलेशन है उसमें बीमारी नहीं हो। इन्होंने ये देखा कि क्योंकि वो उनके कर्मचारी थे, उनके नौकर थे, उनके घर की सेवा करते थे, तो इनको लगा कि अगर उनको बीमारी हो जाएगी तो हमारे सिपाही भी बीमार हो जाएंगे और उनका शोषण तो चलता ही रहता था। लेकिन वो मैन पावर, वही पानी भर के लाने वाले, वही खाना बनाने वाले, वही उनका हाथ पैर दबाने वाले, वो उनकी सेवा करने वाले, वही चौकीदारी करने वाले, तो अगर वो बीमार होंगे तो यहाँ से फिर पब्लिक हेल्थ आया। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया कि उनको हमें कुछ पब्लिक के लिए भी काम करना पड़ेगा ताकि वो बीमार ना पड़े और फिर हम बीमार ना पड़े। तो सैनिटरी कमिश्नर्स वेयर अपॉइंटेड 1864 में। तो देखिए कहाँ कहाँ उनकी प्रोविंस, पहले प्रोविंस हुआ करते थे, एक बॉम्बे प्रोविंस में, एक मद्रास और एक बंगाल। तो मद्रास प्रोविंस होता था, बाद में मद्रास शहर भी था और मद्रास को अब चेन्नई बोलते हैं हम लोग, शायद मद्रास प्रोविंस को हम लोग तमिलनाडु बोलते हैं, तो उसका नाम बदला गया, मेरे सामने ही बदला गया है। मैं तब आई थिंक 70-80 की बात है, एग्जैक्ट मुझे हिस्ट्री नहीं याद है। डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन फेज, आप देखिए इसके पास डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन फेज बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। तो सैनिटरी लेजिस्लेशंस, नियम कानून बनाए गए और रिफॉर्म किए गए कि मेंस का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, मींस वाटर सप्लाई एंड सीवेज सिस्टम। अब देखिए आज भी हम लोग उसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, सेफ वाटर सबको मिले और हमारा जो गटर वाला जो वाटर सप्लाई, जो ड्रेनेज जाता है वो अच्छे से जाना चाहिए। अब देखिए ब्रिटिश इंडिया में आप देखें ये लोग बीमार पड़े हुए हैं, ये लोग प्लेग एपिडेमिक हुआ था 1896 में। तो जैसे आज कोरोना से लोग मर रहे हैं, तो आप देखिए उस समय ये मैं कर्सर से, ये एक लेडी है, इसका ये बच्चा यहाँ मरा पड़ा हुआ है, ये आदमी है। तो प्लेग में क्या होता था, प्लेग में जब लंग्स में होता था तो लोग सांस नहीं ले पाते थे और लंग में ब्लड भर जाता है प्लेग में। और प्लेग जो है वो लोग सोचते हैं चूहे से होता है, तो फ्ली करके एक ऑर्गेनिज्म, एक बीच मच्छर की तरह एक जानवर होता है, फ्ली बोलते हैं, रैट फ्ली। रैट फ्ली वो चूहे के ऊपर सरवाइव करता है और रैट फ्ली के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, और वो जो बैक्टीरिया है उससे प्लेग होता है। तो वो रैट फ्ली चूहे का ब्लड पीता रहता है और जब चूहे को प्लेग होता है तो वो घर से अपनी केनाल से, क्या कहते हैं, जो बिल है उससे बाहर निकल के आता है और वो बाहर निकल के घर के अंदर आके मर जाता है। और जब मर जाता है तो रैट फ्ली चूहे के मरने के बाद उसके शरीर को छोड़ देते हैं और वो करीब 6 इंच जंप कर सकते हैं रैट फ्ली, और वो बाहर निकलते हैं और उनके मुंह के अंदर, पेट के अंदर बैक्टीरिया होता है और फिर वो बाहर आ जाते हैं। फिर उधर उनको अब दूसरा होस्ट चाहिए, तो अब घर के अंदर कौन मिलेगा, तो ये इंसान जो टहल रहा है घर के अंदर वो उनके पैर में चले जाते हैं और रैट फ्ली खाली खून चूसते हैं। और जब खून चूसते हैं पैर काट के, कहीं पे पैर, हाथ में, जहां भी आप, अगर आप जमीन पे सो रहे हैं, अगर आप बेड पे सोएंगे 1 फुट ऊपर तो रैट फ्ली आपको नहीं काट पाएगा। लेकिन कई लोग घर में नीचे चादर बिछा के सोते हैं तो 6 इंच वो जब कर लेता है, आके आपके शरीर में काटेगा और जहां काटेगा वहां पैर में, वहां पे सूजन आ जाएगी थोड़ी सी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। इसके बाद वो इन्फेक्शन कभी कभी लंग्स में चला जाता है। तो ये प्लेग के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दें, प्लेग खत्म कैसे हुआ हमारे देश में। हमारा एक मलेरिया प्रोग्राम चलता था, तो आपको याद होगा डीडीटी छिड़का जाता था 50s के आसपास। तो डीडीटी का छिड़काव इतना ज्यादा क्या हुआ, उससे सारे फ्लीज मर गए और प्लेग अपने आप खत्म हो गया। तो प्लेग के लिए हमारे कंट्री में कोई प्रोग्राम नहीं था, हमारे प्रोग्राम था मलेरिया कंट्रोल करने के लिए। तो प्लेग ये इनडायरेक्ट बेनिफिट हो गया है हमारा। ये आपको भी आश्चर्य होता होगा, प्लेग
आप गाइड पिक्चर देखें, गाइड उसमें प्लेग होता है पिक्चर के अंदर, तो प्लेग कई फिल्मों में आया, और फिल्मों में हम लोग कल्चरल और सब सोसाइटी वो सब दिखाते हैं। हेल्थ प्रमोशनल फेज, अब ब्रिटिश पीरियड में हमने आपको फेज बताए, अब ये नेक्स्ट फेज आया हेल्थ प्रमोशन फेज। इट स्टार्टेड विद बेसिक हेल्थ सर्विसेज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारी हिस्ट्री आज खाली पब्लिक हेल्थ पे हम निर्धारित कर रहे हैं, इसलिए मैं दूसरे इतिहास की तरफ अपने को डेविएट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, 1930 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ ये बनाया गया, ये कलकत्ता में है, यही बिल्डिंग है। अब आजकल आसपास बहुत से सड़कें बन गई हैं। मैं इसको देखने गया था जब बनारस मैंने बीएचयू ज्वाइन किया, तो मैं गया कलकत्ता, मैंने कहा मैं देख के तो हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन है, वहाँ बड़े छोटे छोटे कमरे हैं, चैम्बर में लोग अपना बैठे हैं, और आज भी है, स्टैब्लिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है वो अपने आप को। तो ये रॉकफेलर फाउंडेशन ने डोनेशन दिया था, और उसके थ्रू ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ ये बनाया गया था। इसके बाद 1939 में मद्रास पब्लिक हेल्थ एक्ट ये उस समय बनाया गया, और ये पब्लिक हेल्थ का वर्ल्ड का कह लीजिए, अच्छा हमारे कंट्री का तो ये पहला एक्ट है, अधिनियम कह लीजिए, नियम कह लीजिए, ये वो है। हाँ, ये मैं आपको फिर एक बार लाया यहाँ पे, ये पीरियड हम आपसे बात कर रहे थे प्री वैदिक पीरियड, ये हमने आपसे बात करी, फिर हमने बात करी वैदिक पीरियड, फिर हम आए मेडिवल पीरियड हिस्ट्री में। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया हम कहाँ पर हैं, अब हम इस पर आने वाले हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस। देखिए हमारी टॉक यहाँ से चल रही थी, और ये फेस स्माइल करता हुआ यहाँ तक आ गया। इट मीन्स हमने इतना पोर्शन अभी कवर कर लिया है क्विकली। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा, फिर 20th सेंचुरी की बात करूंगा। तो वी आर हियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपसे बात करना चाहते हैं, सिंस देयर इज एन ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन मेडिसिन एंड ह्यूमन एडवांसमेंट। ऑर्गेनिक रिलेशनशिप हम बोलते हैं सिंपल हेल्दी रिलेशनशिप हो एनवायरमेंट से, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारी जो भी रिलेशनशिप है बिटवीन मेडिसिन एंड ह्यूमन एडवांसमेंट। एनी अकाउंट ऑफ मेडिसिन एट ए गिवन पीरियड शुड बी व्यूड अगेंस्ट द सिविलाइजेशन एंड ह्यूमन एडवांसमेंट। ये मैं आपको बता दूं, इतिहास और जैसे जैसे हमारी जियोग्राफी, जैसे जैसे सोशो कल्चरल सिस्टम बदलता रहा, ऐसी मेडिसिन भी हमारा बदलता रहा। मेडिसिन, अब आप देखिए आजकल हमारी गवर्नमेंट आयुर्वेद को ज्यादा बढ़ावा दे रही है, तो आप देखेंगे हिस्ट्री में आगे चल के हमारी मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, और वो काफी डेवलप करेगा। ये देखिए हिस्ट्री बन रही है अभी फिर से, और आगे देखिए क्या होता है, लेट अस वॉच। तो मतलब हमारी पॉलिटिक्स भी उसको काफी इफेक्ट करती है। तो ये कल्चरल, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नाउ वी ऑल आर अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस। तो आप सब समझ गए कि सोशलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए सोशलॉजी के ऊपर, सोशल कल्चरल के ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन होना चाहिए। और मैंने लेक्चर के शुरुआत में बोल दिया था कि ये हमारी IMS की जो दूसरी फैकल्टी हैं, उनसे मैं चाहूंगा ये इसको पूरा करें, और मैं चाहूंगा कि इसी पैटर्न में अपनी स्लाइड ही मैडम से शेयर कर लूंगा, और फिर वो इसी में फिलिंग करके बोलें तो आपको समझ में आएगा। यस, ये डायग्राम आप देखें, माइलस्टोन्स हमने बहुत ही ब्रॉड दिखाया है आपको। हिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं तो सबसे नीचे देखें HSDC, ये एक प्लानिंग, अभी हम डिटेल में एक एक करके ले लेंगे। 1946 में, अब देखिए आजादी से पहले जब ब्रिटिशर्स हमें आजाद कर रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि इंडिया में ये हेल्थ सिस्टम कैसे काम करेगा, कुछ तो स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो उन्होंने एक भोरे थे, मिस्टर भोरे, उनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई, वो मद्रास के थे और उस समय वहां पे सेक्रेटरी थे। तो मैं डिटेल में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कैसे इन्होंने बताया, खाली यहाँ ये देख लीजिए। इसके बाद 1948 में आजादी के बाद इंडिया ने WHO को ज्वाइन किया। फिर ये नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पहली बार, देखिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, मैं तो बहुत थोड़ी सी बात करूंगा क्योंकि एक एक प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो हम लोग 6-6, 8-8 लेक्चर रखते हैं उस पर छोटे से, तो हम इसी में कवर कर रहे हैं। फिर स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन हुआ 1975 में। फिर आप देखें 78 में हेल्थ फॉर ऑल करके ये एक स्लोगन बना, और ये एल्मा आटा में मीटिंग हुई थी, रशिया में है ये एल्मा आटा प्लेस, और इसमें डिसाइड किया था कि हेल्थ शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल, हेल्थ शुड बी अवेलेबल एट डोर स्टेप। जो लोग घर में रहते हो वो दरवाजा खोले, हेल्थ सर्विस मिले। तो ऐसा ये नहीं था कि आदमी खड़ा रहे हमारा हेल्थ वर्कर, इसका मतलब ये था कि छोटी छोटी पॉपुलेशन में, विलेजेस में हमारे हेल्थ सेंटर हो,
तो मतलब 10,000 की पॉपुलेशन में, जैसे BHU हमारा है पूरे बनारस के लिए, लोगों को कोई 40 किलोमीटर से आता है, 60 किलोमीटर आता है। तो अगर हम छोटे छोटे हॉस्पिटल 10-10 हजार की पॉपुलेशन बना देंगे तो हमारा हेल्थ फॉर ऑल करके हो जाएगा। यही एक ऑब्जेक्टिव था। EPI प्रोग्राम आया, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1978 में आया। उसके बाद यूनिसेफ का फिर NHP नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई। ये हम आपको बताएं, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट समझेंगे कि अगर जैसे आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, अगर प्रोफेसर पहले से डिसाइड नहीं करें कि हम 2 साल BA में ये पढ़ाएंगे, साल हमारा जो सिलेबस होगा उसमें फर्स्ट ईयर में हम क्या पढ़ाएंगे, सेकंड ईयर में क्या पढ़ाएंगे, थर्ड ईयर में हमें कितना अचीव करना है, तो कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा आपको और आप कभी कुछ भी पढ़ेंगे। इन द सेम वे हमारे कंट्री का कोई हेल्थ पॉलिसी ही नहीं थी। आप सोचिए आजादी के बाद तो पहली बार 1983 में दिस इज अ हिस्टोरिकल नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई। और ये मैं आपको बनाना चाहता हूँ, पहली बार हमें लगा कि मतलब कंट्री को एक डायरेक्शन मिला नेशनल हेल्थ पॉलिसी कि हमें क्या अचीव करना है आगे आने वाले 5 सालों में, हम किस डायरेक्शन में जाएं। वो सिलेबस समझ लीजिए, करिकुलम, जैसे आपका सब्जेक्ट का करिकुलम होता है ऐसे हेल्थ का ये करिकुलम था। तो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी और आप देखें 83 के बाद 2002 में बनी ये नेक्स्ट करिकुलम, उसको मॉडिफाई किया और अभी ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 15 में, लेकिन ये 17 में बन पाई। 15 में शुरू कर दिया था, ड्राफ्ट पॉलिसी आ गई थी, लेकिन 17 में, तो अभी आप वेबसाइट में जाएं तो 2017 में हेल्थ पॉलिसी। और ये मैं आपको बताऊं कि इस बार जो हेल्थ पॉलिसी बनी है इसमें हमारे कम्युनिटी मेडिसिन के लोगों को काफी अच्छे से इन्वॉल्व किया गया। और तो मतलब आप देखेंगे उसमें पब्लिक हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया हमारी गवर्नमेंट ने और कहा कि हमें पब्लिक हेल्थ पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है, तो वो उस तरह से बनाया गया और इसमें सारी चीजें। तो पॉलिसी हमें याद है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 3-4 पेज की थी, इसके NHP थोड़ी और बनी और ये जो 15 वाली है ये 57 पेज की है करीब, थोड़ी मोटी सी किताब सी बन गई है। तो काफी डिटेल में इसको बनाया गया है। और ये आपने NRHM जरूर सुना होगा, 2005 का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, काफी घोटाला हुआ था, हम लोग सब लोग इसको घोटाले से याद करते हैं 2005 में। तो 2010 में इसका नाम बदल दिया गया कि लोगों ने सोचा NRHM मतलब घोटाला लोग समझने लगे थे, तो फिर उसका नाम NHM कर दिया, नेशनल हेल्थ मिशन। और अभी ये अच्छा काम कर रहा है। और ये घोटाला हर स्टेट में नहीं हुआ, हमें याद है गुजरात में बहुत अच्छे से काम हुआ। आई रिमेम्बर, मैं वहां था, मैंने देखा कि वो क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस की बात कर रहे थे। और फिर सबसे खतरनाक 2020, आई थिंक नो वन कैन फॉरगेट। आप देखिए ये कितना डरा हुआ चेहरा है, इस समय हम सब ऐसे ही हो गए हैं। और 2020 ने तो एकदम हालत खराब कर रखी है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इसने पब्लिक हेल्थ को रिवाइव कराया है और गवर्नमेंट का इस पर ध्यान दिलाया है। और हमारे ख्याल से आप लोगों ने भी हमारा लेक्चर कोरोना के आने के बाद ही रखा, इसके पहले हम लोगों का कभी लेक्चर रहा नहीं। सो हम लोग हंस भी सकते हैं, मेरा व्यंग नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। सब जगह पब्लिक हेल्थ ये चल रहा है। सो इट्स सो नाइस कि हम लोग इसको जो है। अब देखिए हम आते हैं हेल्थ कमेटी, जो हम आपको उस समय बता रहे थे 1946। ये बगल में जो शक्ल है ये डॉक्टर, ये मिस्टर भोरे हैं, ये IAS ऑफिसर थे, उस समय ICS बोलते थे ब्रिटिश पीरियड में। तो 1930 में ये काम करते थे। इन्होंने बड़ा हिस्टोरिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। तो ये चेयरमैन थे, तो इसको भोरे कमेटी बोलते थे। और इसका नाम था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, तो HSDC। और सर जोसेफ भोरे ये में पैदा हुए थे, इनकी एजुकेशन पूना में हुई और इन्होंने काफी सारा काम मद्रास में किया, वहाँ चीफ अंडर सेक्रेटरी रहे काफी ब्रिटिश पीरियड में। तो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी थे। इन्होंने कई लेवल में एक, हाँ, हमारे हिस्ट्री के स्टूडेंट ने साइमन कमीशन का नाम सुना होगा, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम सुना होगा, तो उसके सेक्रेटरी यही थे जोसेफ भोरे। आप इतिहास ज्यादा जानते हैं। तो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप जब देश हम आजाद करेंगे तो ये हेल्थ सिस्टम कैसे काम करेगा, आपका तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इन्होंने 1944 में मीटिंग बनाई और 2 साल तक काम किया। 46 में जाके इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, जो रिपोर्ट हम आज भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। इन्होंने जो गाइडलाइन लिखी थी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, हमारे बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को भी शायद ना मालूम हो, कि इन्होंने ही दिया था आइडिया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाया जाए। एक अपेक्स इन्होंने लिखा था और उसके लिए जो दिल्ली का एम्स है वो इनका ही रिकमेंडेशन था कि वो होना चाहिए, ताकि वो
हमारे दूसरे मेडिकल कॉलेज को गाइडलाइन दे। तो एम्स बनाया गया है, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं टीचिंग पर, और वो सारी गाइडलाइन हमारे सारे मेडिकल कॉलेज में वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, मेन बहुत लंबी चौड़ी रिकमेंडेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज को इंटीग्रेट किया जाए और प्राइमरी सेंटर बनाया जाए, अपने गांव में जाते होंगे, और चेंजेस इन मेडिकल एजुकेशन इन्होंने कहा कि, और 3 मंथ की ट्रेनिंग दिया जाए हमारे सब्जेक्ट में, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में। पहले नहीं होती थी, जो डॉक्टर होते हैं नए नए बनते हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं होती थी। अब ये एक लंबी लिस्ट है, इसको मैं सोच रहा था बड़ा बोरिंग होगा। 59, 62 में मुदलियार कमेटी बनी, 63 में चड्डा कमेटी, 64 मुखर्जी कमेटी, जंगलावाला कमेटी, करतार सिंह कमेटी, एंड देन 74, 75 में श्रीवास्तव कमेटी। सो लाइंग लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग। तो आप ये देख सकते हैं बहुत सारी समय समय पर कमेटीज बनी जिन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिए। पुराने रिकमेंडेशन अगर इफ दे वर नॉट सो इफेक्टिव तो उन्होंने चेंज किया और नई कमेटीज बनाई। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं और इंटरनेट पे अवेलेबल है। ए मूव फॉर इम्प्लीमेंटेशन 52 में मैं थोड़ा सा आपको क्विकली बताता हूं। पहली बार फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया और सोशल इंजीनियरिंग हमारा शुरू हुआ 52 के बाद। उसके बाद तो इसमें सोशल इंजीनियरिंग में क्या है कि हम लोग मीन्स जैसे ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं कि लोग पार्टिसिपेट करें। ऐसे अभी सोशल इंजीनियरिंग हमें ये करना है कि लोग माने। तो उस सोशल इंजीनियरिंग का एक एग्जांपल देख लें कि हमने कानून बनाया कि फाइन लगाया, 1000 रुपये लगा दिया कि मास्क नहीं पहनेंगे तो 1000 रुपये देना पड़ेगा। दूसरा, पुलिस का डंडा रहता था, पुलिस मार मार के सिखाती थी कि ये पहनो। तो ये जो पहली बार जो 2020 में जो लॉकडाउन किया गया, उसके बाद जो मास्क एकदम पहली बार इंप्लीमेंट किया, तो मैंने देखा जब सेकेंड वेव आई तो कर्फ्यू लग गया एकदम। लोग अपने आप ही घर से नहीं निकले और इतनी सारी डेथ हुई और लोग अपने आप समझदार हो गए। तो जो पहली बार जो डंडा पड़ा या जो नियम कानून ले गए, उसका इफेक्ट हमने अभी देखा सेकेंड वेव के बाद। हालांकि काफी लोग बीमार हो गए, मनमानी करी। आई थिंक होली के लोग काफी मनाए और काफी लोग घूमना शुरू कर दिए थे। तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर फॉर एवरी 1000 पीपल और ICDS स्कीम, इसको मैं डिटेल करूंगा। ये 1000 की पॉपुलेशन में एक आंगनबाड़ी वर्कर होती है। मीन्स लोगों को हेल्थ सिस्टम को पास में लाया गया। फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसीज में आपको बताऊंगा, और फिर दूसरी 2002 बनी और मैं उसका ऑब्जेक्टिव नहीं बताऊंगा, मतलब सर्टेनली 85 में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुआ। और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम देखें, मुझे याद है और BCG वैक्सीन जो काम करती है वो हमारे डिपार्टमेंट में नहीं मिलती। मैं खुद देखता था। इम्यूनाइजेशन भी लॉन्च हुआ तो हमने देखा सारी वैक्सीन गवर्नमेंट एकदम यूनिसेफ ने ला करके, और ये मीजल्स वैक्सीन हम लोग बहुत सक्सेसफुली इसको लगाने लगे। तो इसके बाद 92-93 में पहले छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, डायरिया प्रोग्राम, MCH मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको सबको एक ही नाम दे दिया, CSSM, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड। और इसी के अंदर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी आ गया, इसी के अंदर डायरियल कंट्रोल प्रोग्राम हो गया। वरना क्या होता था, जैसे मान लीजिए हमने एक वर्कर को सिखाया कि तुम भाई तो इम्यूनाइजेशन करता था, एक मलेरिया का काम करता था, एक डायरिया कंट्रोल करता था। जब उनसे कहा कि तुम लोग सारा काम करो तो वो मानते नहीं, हम तो इम्यूनाइजेशन करेंगे, हम इतना सारा काम क्यों दे रहे हैं। तो लोगों ने सजेशन दिया, कमेटी थी, उन्होंने कहा ऐसा करो, सबका नाम एक कर दो, तो उसका नाम CS फॉर सेफ मदरहुड, इसी के अंदर डाल दिया गया। अब लोगों की वर्कर की ट्रेनिंग हम CSSM में करने लगे और ये सारे काम उसी के पार्ट हो गए। उसी का पार्ट इम्यूनाइजेशन हो गया, उसी का पार्ट डायरिया कंट्रोल हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते रहे कि कैसे हम अपनी रीच करें। आप देखें, फिर ये RCH प्रोग्राम आया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये पहले इसका नाम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ था, अब इसमें हमने एडोलेसेंट, अभी और भी आ गया है आगे, ये डेवलप होता चला जा रहा है। तो पहली बार 97 में आया और उसके बाद RCH फेज 2 5-10 में आया। फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हमने आपको बताया था, यूपी में हम लोग घोटाले से इसको याद रखते हैं
ये घोटाला वाला प्रोग्राम था, लेकिन बहुत अच्छा इसमें एक्चुअली हुआ ये कि हमेशा जो मुझे नजर आता है पैसा बहुत कम दिया जाता था, सैंक्शन किया जाता था, लेकिन जब लोगों ने डिमांड करा कि हेल्थ में पैसा दिया जाए, चीजें बनाई जाएंगी, जब पहली बार थोड़ा सा परसेंटेज 0.9 से 1.19 किया है, आई थिंक 1.9 किया गया बजट का, तो इतना ज्यादा पैसा आ गया कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था हाउ टू इन्वेस्ट। और हमें लगता है पहले ट्रेनिंग हो जानी चाहिए कि कैसे क्या करेंगे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था। ग्रेट पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट ऑफ दिस सेंचुरी, क्या क्या हुआ है ये हम आपको बता दें। शायद मेरा लेक्चर खत्म होने जा रहा है, आप लोग घबराइए नहीं, मैं थोड़ा पहले ही खत्म कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप लोग पूछ सकेंगे। तो जैसे वैक्सीनेशन बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आप देखिए ना, पहले जो वैक्सीन बनाने में हमें 10 साल लगते थे, 6 साल लगते थे, आप देखिए कोरोना टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई कि 6-8 महीने में हम लोग बना सके वैक्सीन। हाँ, ट्रायल करने में समय लगता है, लेकिन इमरजेंसी में फिर ट्रायल में हम लोग कम समय देते हैं, 2 महीने में जल्दी से डिसीजन लेना पड़ता है। और सेफ वर्क प्लेस, वीमेन का सेफ वर्क प्लेस, और एफर्ट टुवर्ड्स सेफर हेल्थियर फूड, हेल्थियर मदर एंड बेबीज फैमिली, ये सब देखिए, ये सब एडवांसमेंट है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, रिकॉग्निशन ऑफ टोबैको एज ए हजार्ड, आप लोग हमारे ख्याल से हमारी बीएचयू बहुत तेजी से, हमारा जो बीएचयू का कैंपस है उसको आप लोगों ने टोबैको फ्री डिक्लेयर कर दिया है कई साल से, और दूसरे एफर्ट्स हमारे। तो देखिए हम लोग यहाँ थे, और ये यहाँ से सोशियोलॉजी का कल्चरल वाला है, लेकिन इसके बाद हम लोग यहाँ आ गए, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो आप देख सकते हैं वी वर हियर पहले। और हाँ, ये ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी 2015 मैं आपको बता चुका हूँ, ये 57 पेज की काफी बड़ी चौड़ी है, जो लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। तो इसका मतलब ये करिकुलम है हमारा, एक सिलेबस है, जैसे कॉलेज का होता है ऐसी हेल्थ का सिलेबस है, हम लोग कैसे क्या अचीव करेंगे इस पे सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट में फाइंडिंग है। आई थिंक इस पे भी हम लोग सेपरेट लेक्चर लेते हैं, लेकिन आज हमारा ये इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, खाली हम आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताना चाहते हैं। ये हमारे रेफरेंसेज हैं। और माय डियर एक्सीलेंट बीएचयू, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आपने बहुत ध्यान से मुझे सुना, और शायद आई एम थैंकफुल टू इंटरनेट, आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी, और मुझे यहाँ भी बड़ा सहयोग मिला जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, तो आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी। माय लेक्चर इज ओवर, थैंक यू। Thank you, sir, for your such an insightful talk. Now, I would like to open the session for question answer, or if anyone wants to raise any points or seek clarification from you, because you have such an expertise. And Sutapa, Professor Gangadharan has something to say. Yes. If anyone has. Sir.